Good morning, class. Today we'll take our next topic of the chapter, major seaports. So, as you know, in ninth class we read about the coastal line of our country. It starts from Gujarat till Sundarban Delta, that is of 7,516.6 kilometer. So we can observe that this on this major coastal line we have many ports, and some are major, some are minor. So if we see that the number of major are 12, and in the previous books or the older pattern you will see that they are 187, but at the current period of time their number have been increased, and they have notified till 200, that is the known majors or minor intermediate ports. So with this coastal line we know, so this is one of the main point which you start from your answer, that is 12 major airports we have, and 200 are minors or non-major. So these major ports handle 95% of India's foreign trade. In the previous video we had discussed this, that most of the trade take place from waterways, and in that particularly that is 95% and 68% take place from seaports. So Kandla is one of the first airport developed soon after the independence to ease the volume of trade on the Mumbai port. Now, in history, when we discuss age of industrialization, we read all about that our previous port have been closed down by the British government, and they opened like Mumbai, Kolkata, and Madras. But after independence, one of the main airport has been started by the Indian government in Kutch, that is Kandla. So Kandla is one of the first airport of India, and why it has been opened to release the burden or volume of trade over मुंबई पोर्ट. मतलब जो सारा सारा का सारा जो ट्रेड था हमारा मुंबई से होता था, उसको उसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए कांधला शुरू किया गया. सो इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट इन पाकिस्तान, अब ये भी हमें पता है कि पार्टीशन हुआ तो पहले कराची से होता था, तो कराची नाउ इट हैड बीन शिफ्टेड टू पाकिस्तान. सो आफ्टर द पार्टीशन कांधला ऑल्सो नोन एज दीन दयाल पोर्ट is the tidal port. ठीक है, it caters to दीन दयाल उपाध्याय. इन द नेम यू मस्ट हर्ड अबाउट अमंग द ऑल इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, तो ये इसका नाम अभी दीन दयाल पोर्ट भी पड़ गया है. ऐसे ही आपका पारादीप है उड़ीसा में, उसका नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर पड़ा है. तो मैनी नेम हैव बीन चेंज्ड to see the contribution of freedom fighters and great personality to the country. So these names have been changed to cater to the convenient handling of export and imports of highly productive granary and industrial belt stretching across the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan. So through this port particularly, all kind of trade take place. So Mumbai, another is that Mumbai is the biggest port with the spacious, natural, well sheltered harbor. हार्बर जो आप कहते हैं वो होता है मतलब एक लार्ज और बड़ा एरिया है, जहाँ से कि आपकी और मतलब मल्टीपल बिजनेस कॉमर्स एक्टिविटीज़ जो है वो टेक प्लेस होती है. मतलब यहीं से आपका मेजरली जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है दैट टेक प्लेस. सो विद शेल्टर्ड हार्बर एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज planned port was planned to view the decongest of Mumbai port. तो इसी को देखते हुए जैसे कांधला जो था आपका मुंबई को देखते हुए कांधला किया गया, फिर जो आपका मुंबई पोर्ट को ही देखते हुए जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस किया गया. तो ये इसीलिए किए गए ताकि इनके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो. तो सर्व एज अ हब पोर्ट ऑफ दिस रीजन. नाउ मारमागांव जो है आपका गोवा में जो पड़ता है, दैट इज प्री माइनर आयरन और एक्सपोर्टिंग. इसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा. दिस इज वन ऑफ द मेन क्वेश्चन. जनरली इट कम एज 1 मार्क क्वेश्चन इन एग्जाम. सो मारमागांव जो है आपका दैट इज द प्रीमियर आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, यहाँ से इस वाले पोर्ट से सिर्फ
आयरन ओर ही एक्सपोर्ट किया जाता है। द पोर्ट अकाउंट्स ऑफ अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। ठीक है, कितना 50% आयरन ओर जो है इंडिया का यहीं से एक्सपोर्ट होता है। सो न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका केटर्स द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड कंसनट्रेट्स फ्रॉम कुदुरमुख माइंस, क्योंकि यहाँ पर कोल माइंस है, तो आयरन ओर माइंस हैं, तो यहाँ आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी है, तो जिसकी वजह से ये पॉपुलर है और यहाँ से आपका एक्सपोर्ट होता है जापान को और ईस्टर्न कंट्रीज़ को। ठीक है, कोची इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड इन एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद नेचुरल हार्बर। अभी आपको लगून भी पता होगा, लास्ट ईयर हमने पढ़ाया भी था कि लेक और लगून में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो लगून है वो थोड़ा इंटीरियर की तरफ होती है, लैंड मास की तरफ होती है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद सी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है कोची जो आपका मेन है साउथ वेस्टर्न पोर्ट एंड लोकेटेड इन द एंट्रेंस ऑफ लगून, नेचुरल हार्बर है ये। And moving along the eastern coast, you would see that extreme southeastern port of Tuticorin in Tamil Nadu। मतलब आप कोस्ट से, आप क्योंकि हम कोस्टल पे डिस्कस कर रहे हैं कि we have a big coastal line and how many ports we are having on this coastal area. So this port has a natural harbor, a rich hinterland, and thus it has flourishing trade handling a large varieties of कार्गोस। ठीक है, यहाँ से भी आपका आयरन ही एक्सपोर्ट किया जाता है। सो इवन आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स एट्सेट्रा, क्योंकि साउथ में है, तो आप देखिए जितने भी पोर्ट हैं सबकी कनेक्टिविटी जो है उस नियर बाय रीजन के साथ है। सो कोस्टल रीजन इन इंडिया, चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड artificial port of the country, and it is ranked next to Mumbai in the terms of volume trade cargo. Visakhapatnam is the deepest landlock। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, समटाइम इट कैन कम इन 1 मार्क क्वेश्चन। तो विशाखापट्टनम जो है लैंडलॉक, लैंडलॉक किसको बोलते हैं, ये बाहर की तरफ नहीं है, इंटरनल अंदर इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उसके अंदर की साइड है। ठीक है, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, एंड दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली conceived as a outlet of iron ore export। पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा, विच आई टोल्ड यू अबाउट, कि पारादीप जो है ओडिशा में है। अगर इसका एग्जाम में नाम चेंज करके भी आता है बिकॉज ऑफ न्यू वर्जन ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर आपको APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी आ सकता है। तो स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट ऑफ आयरन कोर, आप देखते हैं जितना भी है या तो कार्गो का इसमें रेफरेंसेस है या आयरन ओर का है। सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ एक्सपोर्ट इज डन फ्रॉम दीज पोर्ट्स। कोलकाता एंड इनलैंड रिवर पोर्ट, अब ये रिवर पोर्ट है हुगली, हुगली के नाम से भी इसको जानते हैं ज़्यादातर। एंड दिस पोर्ट सर्व्स वेरी लार्ज ऑफ रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, बीइंग अ टाइडल पोर्ट। अब टाइडल भी आपको समझ आता है कि यहाँ पर टाइड्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है, इस रीजन में। सो इट रिक्वायर्स द कॉन्स्टेंट डिग्रेडिंग ऑफ हुगली, तो मतलब हुगली का इसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और क्योंकि यहाँ से जितना भी है हुगली रिवर बेसिकली आपका अभी हमने इनलैंड वाटरवेज में देखा था, तो मोस्टली जो आपका ट्रेड है विच टेक प्लेस फ्रॉम हुगली, एक तरीके से पोर्ट में ही आता है। हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप इन दिस सब्सिडियरी पोर्ट, तो इसके साथ साथ इसका हेल्पिंग पोर्ट जो है वो हल्दिया भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। तो अपने आप में कोलकाता रीजन जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। Haldia port was developed and subsidiary port in order to relieve growing pressure on Kolkata port। As I told you, मैंने अभी बताया कि कोलकाता अपने आप में मेजर पोर्ट में आता है, लेकिन इसके आसपास स्मॉल काइंड ऑफ पोर्ट्स भी एस्टेब्लिश किए गए हैं, बनाए गए हैं। हुगली इज़ वन ऑफ, हुगली एंड हल्दिया इज़ वन ऑफ देम। तो ये किस लिए, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो, मतलब सो हजल एंड बजल एक्टिविटी डोंट टेक प्लेस। ठीक है, तो इतना ही इसमें था। बट you can see that many names have been introduced by this port system only। तो सी पोर्ट्स में इतने सारे नाम हैं और इनमें से कोई भी आ सकता है पेपर में, तो डेफिनेटली यू मस्ट नो द लोकेशन। सो इट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड होमवर्क दैट you must locate all the name in the map of India। ठीक है,
So this is your homework for today, which you have to do. Now another is that Airways. So Airways, because this video is again lengthier, you will feel problem to download it. So I leave the video here only. Airways will discuss in the next video. Okay, thank you. Have a nice day.